I have struggled with acne for years. I have went to dermatologist, I have used every possible skincare out there in the market. And weirdly the thing that helped me most wasn't even a skincare product. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And I am back with another YouTube video, and this time I am talking about something that is actually very personal to me. It's my experience of how I struggled with acne over the years and what actually helped me and how did I, cure it. So yeah, let's talk about that. I think I started getting acne back in 11th or 10th standard, और उस टाइम पे मेरे को इतने ज़्यादा नहीं होते थे. It was like maybe one or two pimple or maybe like little acne, but it really got bad back in 2022 to a point जब मेरे cheeks पे, chin पे, हर जगह पे there was always one or the other pimple या acne, and there were like a lot of acne scars on my face. And उस टाइम पे मैंने कोई ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट छोड़ा नहीं था कि जो मार्केट में आया ना और मैंने यूज़ ना किया हुआ. आई यूज़ टू यूज़ एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट जो गारंटी करता था दैट इट्स गोना हेल्प विद योर एक्ने, इट्स गोना हेल्प विद योर एक्ने प्रोन स्किन एंड एवरीथिंग. आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली जो यूजुअली एक सेन इंसान करता है, आई वेंट टू अ डर्मैट. डर्मैट ने सबसे पहले ये चीज़ बोली जो सब लोग बोलते हैं, जो आई थिंक हम सबको भी पता है, दैट स्टॉप ईटिंग जंक, अपनी स्लीप सुधारो, अपना डाइट सुधारो, ईट हेल्दी फूड, डोंट ईट ऑयली फूड, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर. एंड स्किन केयर प्रोडक्ट उसने मेरे सारे चेंज करवा दिए थे. दैट यूज दिस प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट, ऑल द बूजी वंस, नथिंग हेल्प यू गाइज. आई स्वेयर नथिंग हेल्प. मैंने उसको यूज़ किया, लाइक शी आस्क्ड मी टू कम बैक अगेन आफ्टर 2 months, एंड मैंने 2 months तक उसके सारे स्किन के प्रोडक्ट यूज़ किए. नथिंग एक्चुअली हेल्प. मेरे को बहुत गंदे ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे. आई वाज लाइक आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर. सो मैं नहीं गई. माई जर्नी स्टिल कंटिन्यूड, एंड इन 2023 दिसंबर आई केम टू कैनेडा. आई स्टिल हैड एक्ने उस टाइम पे, एंड मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स थे. द वर्स्ट पार्ट इज जब तुम्हें एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं, वो हार्डली एक वीक में मे बी मैक्सिमम एक वीक में क्लियर हो जाते हैं. बट जो ज़िद्दी एक्ने स्कार्स होते हैं ना, वो नहीं जाते हैं. टू दिस पॉइंट आई स्ट्रगल विद एक्ने स्कार्स. एंड यहाँ पे आके आई थॉट दैट मे बी इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डर्ट बहुत ज़्यादा है. मे बी कैनेडा में आके, बिकॉज दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर इफ इट एक्चुअली हेल्प्ड और नॉट. Maybe somewhat it helped me because India में it's very humid and it's very hot, and hot weather में तुम्हें pimples and acne थोड़े ज़्यादा trigger होते हैं तुम्हारे, rather than like if you stay in much cooler place. So I think that kinda helped me, but of course like that couldn't be the only factor that helped me with my acne journey, right? By the way, if I'm saying कि मेरे को कोई product help नहीं किया, that means कि actually मैं उस product पे इतना rely नहीं कर सकती कि हाँ ये product holy grail है, it will help with your acne, like it will vanish your acne. That is what I mean when I say कि I don't rely on any product. Of course there were a lot of products that could help you control your acne or your pimples, but there isn't any product that I can totally rely on कि मैं बोलूँ कि बस ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो और इसके अलावा कुछ और मत करो तो तुम्हारी एक्ने साफ़ हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे. So I was saying back in 2023 I started going to the gym. I don't know why मेरे दिमाग में मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बोला that you should really need to hit the gym. I mean I always wanted to start it, but for some reason I never started it. And mind you, I was kinda thin in 2023 like body, because I was kinda underweight when I was in India. To this date मैं consistently gym नहीं जा रही हूँ. If I go like 2 to 3 times a week, and sometimes I just totally skip it, sometimes I just stay consistent for 2-3 months. So, like I started focusing more on my protein intake, eating proper meals, and having eggs in the morning. That's the one thing that I have changed after coming to Canada. Like it has been 2 years. जैसे मैंने जिम जाना शुरू किया, I became more conscious. मैंने थोड़ी अपनी eating habits सुधारी, मैंने प्रोटीन इंटेक अपना थोड़ा लेना शुरू किया, बेटर किया. मैंने वे प्रोटीन ऐड किया अपनी डाइट में. मैंने बनाना शेक्स एंड एवरीथिंग आई यूज टू हैव. सो आई बिकेम काइंड ऑफ कॉन्शियस विद व्हाट आई वाज पुटिंग इन माई माउथ एंड इन माई स्टमक. बट ग्रेजुअली मेरे एक्ने को भी हेल्प हुआ, बिकॉज वन थिंग आई पर्सनली बिलीव इज़ लाइक मेरे लिए मेरे एक्ने हार्मोनल थे आई थिंक. तो मैंने जैसे ही जिम जाना शुरू किया, मेरे थोड़े हार्मोन्स कंट्रोल में हुए बिकॉज ऑफ माई ईटिंग हैबिट एंड जिम, एक्सरसाइजिंग, वेट लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग. एंड उस वजह से मेरे को थोड़े एक्ने और पिंपल्स में भी हेल्प हुई. कमिंग बैक टू द स्किन केयर टॉपिक गाइज, डोंट
यूज़ अ लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर. जितना तुम ज़्यादा अपने स्किन को कॉम्प्लिकेट करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, उतने ही ज़्यादा लाइक नथिंग विल हेल्प यू. लाइक यू नो, इफ़ यू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज़ गोना हेल्प यू इन द एंड. 2 to 3 प्रोडक्ट्स जो तुम्हारे स्किन टाइप पे वर्क कर रहे हैं, एंड जस्ट स्टिक टू इट ओवर द ईयर्स. सो लेट मी टेल यू व्हाट माय स्किन केयर रूटीन लुक्स लाइक राइट नाउ. अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप. इफ इट्स ड्राई, इट्स कॉम्बिनेशन और इट्स ऑयली, उस हिसाब से स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट. अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है, यू कैन यूज़ हैवी प्रोडक्ट्स. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, थोड़े जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे आओ जो तुम्हारे फेस पे लाइट फील करे. इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन just like me, let me tell you what products I use. So for the face wash, currently I'm using Vichy ka face wash. It's a gel based, and I'm not sure if that's available in India. My sister recently got Medimix ka face wash from India randomly, and she got like 2 of those bottles. We have been like, until last week we were using those 2 bottles, yeah, and it was like really good. It was suiting my face. You don't need to spend a lot of dollars or a lot of rupees on a skincare product. I used to use Medimix face wash, and then I'm currently using the Vichy one. I also like the La Roche-Posay one, and I also like CeraVe के products. So these are the 4 फेस वॉश जो मैं बैक एंड फोर्थ यूज़ करती रहती हूँ, वट एवर आई फील लाइक, बट ये मेरे फेस पे सूट करे हैं. फॉर द फेस सिरम्स गाइज, आई वॉज एक्चुअली यूजिंग सैलिसिलिक एसिड फॉर ईयर्स व्हेन आई वाज इन इंडिया. बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, सैलिसिलिक एसिड मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया, लाइक नेवर. सो आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड यूजिंग इट, एंड उसके बाद मेरे को मेरा फेस एक्चुअली बेटर लगने लग गया था. करंटली आई एम यूजिंग नाइसिनामाइड फ्रॉम द ऑर्डिनरी. नॉट करंटली एक्चुअली गाइस, आई हैव बीन यूजिंग फॉर 4 to 5 years नाइसिनामाइड, एंड इट इज़ सेड दैट नाइसिनामाइड आपके एक्ने स्कार्स पे हेल्प करता है. सो दैट्स द मेन थिंग दैट आई स्ट्रगल विद राइट नाउ. मेरे को मे बी अगर पिंपल भी होते हैं, जस्ट वैनिशेज, लाइक एक आधा पिंपल होएगा मे बी महीने में एक बारी. मेनली आई स्ट्रगल विद एक्ने मोर रादर देन पिंपल. इवन इफ आई गेट एक्ने, वो लाइक इट जस्ट वैनिशेज अवे, बट लाइक द जो जिद्दी स्कार्स होते हैं ना, वो रह जाते हैं. सो फॉर दैट आई यूज़ niacinamide, and it's actually very good. And then you know, maybe once or twice a week I use Paula's Choice का AHA BHA toner. It's actually really good. मेरे को अच्छा लगता है वो. I feel like वो मेरी face को exfoliate कर देता है. तो I use that toner and use any under eye cream I कर लेती हूँ just to keep my under eyes hydrated, because I don't think so वो anyway help करता है. And if you are 25 plus, I would suggest start using retinol or retinol in your skincare. It helps with a lot of things. Recently I started using this Korean product, this Korean brand का retinol, and मेरे को थोड़े बहुत breakouts हुए, because it is said that whenever you start using retinol तुम्हें like first 3 months you do get quite a lot of breakouts. So you have to be patient and consistent with it. For the moisturizer, I have been using, since I came to Canada, I have been using this B Complex moisturizer. It's really good. It's lightweight, but it's not that lightweight that it dries my skin out. Recently I started using this Dr. Althea का 345 moisturizer, and it is actually very nice. मेरे को बहुत अच्छा लगा वो product. So yeah, I mean that is the skincare that I am using. That's it. Like बेसिक तो फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र होता है सबका, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नाइसिनामाइड यूज़ कर लेती हूँ लाइक एवरी अदर नाइट, और सम नाइट्स आई यूज़ AHA BHA टोनर. एंड इफ़ आई फील लाइक माई स्किन इज़ गेटिंग ड्राई, बिकॉज कैनेडा में बहुत हार्श विंटर्स होती हैं, सो एंड घर के अंदर यहाँ पे हीटर्स चल रहे होते हैं, सो माई फेस टेंस टू गेट यू नो फ्लेकी एंड ड्राई समटाइम्स. सो इफ़ आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट, मैं मॉर्निंग में हाइलुरोनिक एसिड ऐड ऑन कर लेती हूँ. आई यूज़ द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स. इट्स द बेस्ट गाइज. इट्स चीप, इट्स नाइस, इट्स इफेक्टिव. So just use that one. Don't rely on any expensive brands की किसी और brand का use कर लेगा. Like first was the skincare, secondly of course diet and gym that helped me. I'm still not consistent with it, but personally it has helped me a lot. So I would suggest कि आप वो भी try कर सकते हैं if it's gonna help you. अगर मैं अभी भी if I'm stressed about one thing, I'm pretty sure मेरे को कल पिंपल हो जाएगा because of that. So stress plays a major role in your acne and your pimples. So yeah, that was my acne journey and the things that helped me. So I thought let me share it with you guys. अगर किसी एक को भी help हो जाएगा, like I would actually feel really nice. And I know guys, I have been through this journey. It's not easy. It takes time, sometimes a lot of time, and you have to be patient and consistent with it. But yeah, I mean, you guys are not alone. I know it feels very frustrating, but your skin will not be like this forever. So you have to, trust the process. So you have to
ट्रायल एंड टेस्ट कि कौन सी चीज़ आपको हेल्प कर रही है. इज़ इट योर लाइफ स्टाइल, ऑफ इट्स योर हॉर्मोन्स, या स्ट्रेस है, या फिर समथिंग दैट यू आर अप्लाइंग ऑन योर फेस. सो यू हैव टू ट्रायल एंड टेस्ट again and again. If you guys want any other realistic content from me, if you want my help, or if you have any questions regarding this video, you can comment down below and reach out to me on Instagram. I'm gonna reply you. So yeah, I hope it was helpful to you guys, and I'm gonna see you in my next one. Bye.